Wonderful good morning to all my lovely Patans. I hope you all are doing well and you are doing well in your class test also. So today we are going to do the next topics of your chapter 7, that is word editing and formatting. So the topics which we will discuss today are changing the text color, changing the alignment of text, and also how we can change the size of your font, the font size, and how we can make your text bold, italic, and how we can underline it. So these topics we are going to discuss, and we'll also do the exercise given on page number 80. Okay, so let's start the chapter. So today is 13th of August and the topics which we are going to discuss today are changing the font size of the text, making the text bold, italic or underline, changing the color of the text and changing the alignment of the text. So one by one we'll discuss these topics. So let's start with the first one. So this is the project we are doing. So now we'll select the first one, first heading, the mobile computer. Select it. So first is changing the font size of the text. Now font size means the height and length of your text. आपके टेक्स्ट की हाइट कितनी होगी और उसकी लेंथ कितनी होगी, that is controlled by your font size. Okay, so you can see here under home tab, this is your home tab, and under the font group we have this font size. आप अपने टेक्स्ट का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं. You can use these also. If you want to increase the size, use this bigger A. If you want to decrease the size of your text, you use the smaller A. Okay, so as you have to just select the text, and now I'll show you how you can change. Just take the mouse pointer on the font size, click on it, and you will see a list of numbers. जैसे जैसे आप साइज़ कम करेंगे, ये आप देख सकते हो द टेक्स्ट विच वी हैव सेलेक्टेड, जो भी हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया है उसका साइज़ कम हो रहा है. इफ़ यू विल इंक्रीज़, it will keep on increasing. Okay, so this is how you can increase the size of your text. So इस तरह से आप अपने टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं. Okay, like I am making it now, it is 14, I am making it 16. Okay, so this is the way you can change the size of your text. आप किसी भी टेक्स्ट के लिए आप ये टेक्स्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं. यू कैन सेलेक्ट दिस टेक्स्ट ऑल्सो. अगेन क्लिक ऑन द फॉन्ट साइज. आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं साइज़ बड़ा कर रही हूँ, जो भी हमने टेक्स्ट सिलेक्ट किया है उसका साइज़ इंक्रीज़ हो. इफ़ यू आर इंक्रीजिंग, इट विल इंक्रीज़. इफ़ यू विल डिक्रीज़ द नंबर, इट विल डिक्रीज़. Okay, so this way you can change the size of your text. Next is making the text bold, italic or underline. Bold, italic और underline अगर आप अपने टेक्स्ट को करते हो, then it means it will give you a more focus on that particular topics. Like this is the text, I have selected this text. Now you can see here again in the font group, B for bold, I for italic and U for underline. Underline करना, इसीलिए नीचे line भी बनी हुई है that is underline.
और अंडरलाइन के साथ में आपका एक ड्रॉप डाउन एरो है। व्हेन यू विल क्लिक, आप लाइन सिलेक्ट कर सकते हो, आप किस तरह की लाइन चाहते हो। एज़ वी हैव सिलेक्टेड द मोबाइल कंप्यूटर, आप यहाँ देख सकते हो मोबाइल कंप्यूटर हमने टेक्स्ट सिलेक्ट किया है, तो उस पर अगर आप अंडरलाइन अप्लाई कर रहे हो, विच एवर लाइन यू विल सिलेक्ट आउट ऑफ दीज, इट विल अपीयर बिलो दैट। आप देख सकते हो जैसे भी मैं चेंज कर रही हूँ वैसे वैसे आपके मोबाइल कंप्यूटर के नीचे लाइन चेंज हो रही है। ओके, सो दिस इज़ योर अंडरलाइन ऑप्शन। इफ़ यू विल क्लिक ऑन द बोल्ड और इटैलिक, इटैलिक से क्या होता है, आपका जो टेक्स्ट होता है वो स्लांट होके आ जाता है, इट स्लांट टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड। ओके, आप देख सकते हो। एंड इफ़ यू विल क्लिक ऑन द बोल्ड, आपका जो टेक्स्ट है वो और ज़्यादा डार्क हो जाता है। एंड क्लिक ऑन अंडरलाइन ऑल्सो, तो आपका अंडरलाइन भी अप्लाई हो गया है, इटैलिक भी हो गया है और बोल्ड भी हो गया है। अगर आपको ये इफ़ेक्ट्स हटाने हैं, रिमूव करने हैं, तो दोबारा बोल्ड पे क्लिक कर दीजिए, वो हट जाएगा। इटैलिक पे क्लिक करोगे वो हट जाएगा। अंडरलाइन पे क्लिक करोगे इट विल ऑल्सो बी रिमूव्ड। ओके, व्हेन यू विल अप्लाई इट विल बी हाईलाइटेड। आप देख सकते हो अब तीनों हाईलाइट हो रहे हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। ओके, so this is how you can apply these effects to your text. Okay, now also I want to let you know the shortcuts for your spelling and grammar. अगर आपको shortcut की यूज़ करनी है then you can use Alt plus R plus S to check the spelling and grammar of your text in the document. Okay, and you can also press Alt plus F7 अगर आपको next misspelled और grammatical error देखना है then you can use the Alt plus F7, and if you want to choose the spelling command you can also press F7 key. Okay, F7 is the function key, F7 available on your keyboard on the top row of your keyboard. Also, if you want to use the thesaurus feature you can press Shift plus F7 key, and you can also press Alt plus R plus E key to suggest other words with a similar meaning of any of the selected word. किसी भी word को आप select करके Alt plus R plus E की जब आप press करेंगे then you will see the different suggestions for that selected text having the word same meaning, that is the synonym. Okay, now come to the changing the color of the text. अब आप देख सकते हैं आपका ये सारा टेक्स्ट जो हमने टाइप किया है इट इज़ इन ब्लैक कलर। तो अगर आपको अपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना है देन हाउ यू विल डू दैट, विल गो अगेन इन द फ़ॉन्ट ग्रुप में जाएंगे and here you can see this option, this A, below that you can see the color here. So this is your font color. जब आप इस पे पॉइंटर लेके जाएंगे it will show you can see here font color change the text color. font color क्या करता है, it change your text color. जो भी टेक्स्ट आप सेलेक्ट करोगे उसका कलर ये चेंज करेगा। So click on this drop down arrow, you can select any of the color. If red, you can see the selected text is now red in color. जो हमारा selected text है वो red color में आ गया है। Suppose अब हम ये text select कर रहे हैं, again I told you to use the mini toolbar. So I told you जैसे ही आप कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे और ये एकदम से फेंट होके आपका नज़र आएगा ऑन द राइट साइड ऑफ द सेलेक्टेड टेक्स्ट। जो भी टेक्स्ट आप सेलेक्ट करेंगे उसके राइट साइड पे देख सकते हैं पहले ये धुंधला धुंधला नज़र आता है एंड देन जब आप एकदम से माउस मूव करेंगे राइट साइड देन इट विल अपीयर प्रॉपरली।
सो आप यहाँ से भी ये ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फ़ॉन्ट साइज़। ग्रो फॉन्ट मीन्स, मैंने बोला था आपको कि ग्रो फॉन्ट मीन्स इट विल इंक्रीज द साइज़, श्रिंक फॉन्ट विल डिक्रीज द साइज़ ऑफ योर टेक्स्ट। एंड दिस इज़ योर फॉन्ट कलर। यहाँ से भी आप कलर अप्लाई कर सकते हैं, वट एवर कलर यू वॉन्ट टू सेलेक्ट। आप जो भी कलर अपने टेक्स्ट के लिए सिलेक्ट करना चाहें। ओके, सो दिस वे यू कैन चेंज द कलर ऑफ योर टेक्स्ट। इस तरह से आप अपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ चेंजिंग अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट। अलाइनमेंट मीन्स आप अपने टेक्स्ट को किस तरह से अरेंज करना चाहते हैं। So in this we have 4 options and these 4 options are available in your paragraph group. These are the 4 options. This is your left alignment. I'll show you the, when you will bring, you can see align text left. तो ये आपके टेक्स्ट को लेफ़्ट साइड पे अलाइन करेगा। When you will move the cursor to the next, it will align your text to the center. सेंटर में अलाइन करेगा। नेक्स्ट इज़ अलाइन टेक्स्ट राइट। ये आपका टेक्स्ट को राइट साइड पे अरेंज करेगा। एंड दिस इज़ जस्टिफाई। ये आपके लेफ़्ट और राइट पे इवनली टेक्स्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ओके, सो अलाइन टेक्स्ट टू बोथ द लेफ़्ट एंड राइट मार्जिन, एडिंग एक्स्ट्रा स्पेस बिटवीन वर्ड एज नेसेसरी। तो ये आपको आपके जो भी आप टेक्स्ट टाइप करते हो उसको लेफ़्ट और राइट दोनों पे इक्वली अलाइन करता है। लाइक आई एम सिलेक्टिंग दिस टेक्स्ट, हम टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। नाउ यू विल सी आई विल अप्लाई। नाउ इट इज़ लेफ़्ट अलाइन है, अभी लेफ़्ट साइड पे आपका टेक्स्ट अरेंज है। व्हेन आई क्लिक ऑन सेंटर यू कैन सी द अरेंजमेंट। नाउ इट इज़ इन द सेंटर। ये आपका जो सारा टेक्स्ट है वो सेंटर पे आ जाएगा। नाउ इफ़ यू विल क्लिक ऑन द राइट अलाइनमेंट, आपका जो टेक्स्ट है वो राइट साइड पे अलाइन हो गया। नाउ इफ़ यू विल क्लिक ऑन जस्टिफाई, तो जस्टिफाई पे ये आपका इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और अकॉर्डिंगली उतना ही स्पेस, एक्स्ट्रा स्पेस भी वर्ड्स में ऐड कर देता है ताकि लेफ़्ट और राइट पे इक्वली आपके टेक्स्ट प्लेस हो। ओके, सो दिस इज़ हाउ आप अपने टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, लेफ़्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको पूरे टेक्स्ट को ही लेफ़्ट पे या पूरे टेक्स्ट को ही राइट पे करना है। आप जितना टेक्स्ट जहाँ चाहें उसको कर सकते हैं। लाइक सेलेक्ट दिस टेक्स्ट एंड क्लिक ऑन द राइट साइड, सेलेक्ट दिस टेक्स्ट, क्लिक ऑन द लेफ़्ट साइड और क्लिक ऑन द सेंटर। तो जैसे भी आप अरेंज करना चाहते हैं यू कैन अरेंज दैट। ओके, अगर आपको उसको रिप्लेस नहीं करना है तो आप सेलेक्ट करने के बाद कहीं पे भी क्लिक कर दीजिए और वो आपका वापस से आ जाएगा। एंड यू कैन ऑल्सो यूज़ द अंडू कमांड। आप अंडू फीचर भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक हमने अब जो भी ये कलर किया था इसको हमने रिमूव करना है तो हम बस अंडू बटन पे क्लिक करेंगे क्विक एक्सेस टूल बार पे। तो जो जो हमने चेंजेस किए थे वो सारे रिमूव हो जाएंगे। देखो कलर भी चेंज हो गया, अंडरलाइन हट गया है। सो दिस वे you can apply the formatting to your text. So everyone just practice this, and if you have any doubt, any query, note down or underline in your book and will take your doubts and your queries in the live session. Thank you for attending the class. Till then, take care.
Stay safe, stay healthy. Thank you so much. Bye.